أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يح يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی الکریم۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا تو وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے چند آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا جو سود کے حرمت کے پیرائے میں کہے گئے ہیں۔ تو آج ہم اسلامک فائنانس اور بینکنگ کے بارے میں تھوڑا سا ایک تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سود کیا ہے اور سود کی حرمت کیوں ہے، اور آج کل کے مسلمان کو کیسے اس سے بچنا چاہیے، اس کا متبادل کیا ہے۔ تو اسلامک فائنانس اور بینکنگ جو آج کا ایجنڈا ہمارے پاس ہے، ایک تو ہم ربا کی ڈیفینیشن دیکھیں گے مختصراً، چھوٹے سے وقفے میں ہم اس کا ایک تذکرہ کریں گے، قرآن کی کیا ہدایت ہے اور سود کو کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے کیا مضر اثرات ہیں، اور اسلامک پرنسپلز جو ہے اس کے بنا پر ہم کیسے اسلامک بینکنگ کو قائم کر سکتے ہیں، اور اسلامک فائنانس اور اس کے کچھ ایگزامپلس ہم اس کا ڈسکشن آج کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ ربا کس کو بولتے ہیں۔ ربا کا لفظ جو آیا ہے قرآن میں حدیث میں، ربا کا مطلب کیا ہے؟ ربا کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اصل جو پرنسپل اماؤنٹ ہے جو لین دین میں ہوتا ہے، جو دینے والا اگر اس کو اس کے علاوہ لے لے کوئی بھی اس سے زیادہ رقم، جو اصل رقم ہے اس سے کچھ بھی زیادہ ہو، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی کو قرضہ دیا جائے یا کوئی لون دیا جائے، کسی کاروبار کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کچھ بھی
सिनेरियो हो, जो असल रकम से जो भी कुछ ज्यादा होगा, एक्सेस होगा, है ना, जायद होगा, उसको रिबा की कैटेगरी में उसको हम लाते हैं। तो रिबा का यही है कि जो असल दिया था उससे ज्यादा लेना, वो रिबा में आता है। ये रिबा का एक सरसरी जो है मीनिंग है। जायद, सेम जीन्स हो ये भी। जायद, जैसे खजूर दिया हमने, फिर हमने ज्यादा खजूर लिए, वो भी रिबा में आएगा। पैसा दिया, पैसे के बदले हमने जायद पैसा दिया, वो भी रिबा में आता है। अब कुरान में मैंने आपको अभी आपके सामने चंद आयत जो तिलावत की और उसका जो तर्जुमा है वो भी आपके सामने रखा। आपने समझ लिया होगा कि कुरान में क्या हिदायत है। अब उसमें से जो सूरह बकरा की जो आयत है 275, अल्लाह फरमाते हैं व अहलल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा। ये क्या होता था कि जो लोग थे वो बोलते थे भाई रिबा तो एक कारोबार जैसा है, जैसे कारोबार में किसी को फायदा होता है, रिबा में भी, सूद में भी हमको एक फायदा मिलता है। लेकिन अल्लाह ने उसका जवाब दिया। और आजकल की दुनिया में भी आप देखेंगे कि इवन न सिर्फ नॉन मुस्लिम, कहीं कहीं तो नॉन मुस्लिम समझ जाते हैं कि हाँ सूद गुनाह है, अच्छा नहीं है, लेकिन मुसलमान आके इसकी वकालत करते हैं भाई ये तो एक तिजारत जैसा है। आजकल का बैंकिंग जो सूद है वो सूद नहीं है, वो रिबा नहीं है। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में इसका जवाब दिया है। अल्लाह ताला ने क्या जवाब फरमाया कि अल्लाह ताला ने ट्रेड को, तिजारत को हलाल किया है और सूदखोरी को हराम करार दिया। तो अल्लाह ताला ने उनका जवाब ये नहीं दिया नहीं नहीं रिबा जो है वो तिजारत नहीं है, नहीं रिबा जो है वहां कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिबा में फायदा होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या बोला, ये मेरा, मैंने इसको हलाल किया है तिजारत को, ट्रेड को, और रिबा को मैंने हराम किया है। तो उसी वक्त इसकी जड़ें ही कट गई। मतलब इस फरमान के साथ ही इसका कोई अब जवाज ही नहीं रहा कि कोई ये सवाल करे कि भाई ये इसमें भी तो फायदा है, ये भी तो ट्रेड जैसा है, ये भी तो तिजारत जैसा है। तो अल्लाह ने कैटेगोरिकली इसके बारे में ये फरमाया है। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी आयत है, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो है 278 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आपके सामने अभी तलावत भी की गई, फजरू मा बकिया मिनर मिनर रिबा, जो आप पर सूद का अभी बाकी पैसा है, लेने का है दूसरों से, उसको आप छोड़ दो। यानी कि अब जो जितना सूद आप अभी तक लिया तो हो गया, लेकिन आगे का जो सूद अभी आपको बाकी है वो मत ले लो, उसको छोड़ दो। फजरू, ये हुक्म है ना, ये अम्र है, पहले अम्र है, फजरू छोड़ दो। हम्म, फजरू, फाजरू मा बकिया मिन रिबा, तो जो भी रिबा में जो अभी बाकी है आपका, यानी कि जो जहां था, मानो किसी ने किसी को 10 लाख दिया था और अभी 5 लाख सूद का अभी बाकी था, और लेकिन 5 लाख लिया था, तो बोला जो लिया है वो लिया, लेकिन जो 5 लाख बाकी है उसको छोड़ दो, उसको माफ करो, अब नहीं लेना, अब आपके ऊपर ये गुनाह है। इल्लम तफअलू, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी कि आपने सूद को छोड़ा नहीं, सूद को माफ नहीं किया और आगे से सूद कंटिन्यू लेते रहे, फ़इल्लम तफअलू, अगर आपने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नू बिहर्बि मिनल्लाह, तो जान लो कि अल्लाह और रसूल की तरफ से, बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक जंग का ऐलान है। यानी कि अब जानबूझ के आपको ये बताया गया है कि ये अब हराम है, सूद लेना हराम है। अगर आप इसके बावजूद आप इसकी तरफ से आपके खिलाफ जंग का ऐलान है, ये एक बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ी बात है, जिसको हम अभी भूल गए। अहादीस में भी इसकी तलकीन आई है कि सूद को छोड़ना चाहिए। और उसमें एक हदीस है, सही मुस्लिम की है, लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहि, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत फरमाई उन्होंने किसके ऊपर, जो सूद खाएगा, जो सूद खिलाएगा, जो इस सूद के दस्तावेज को रिकॉर्ड करेगा, यानी कातिब होगा, और जो इसका गवाह होगा। यानी कि सूद लेना, सूद देना, सूद का लिखने वाला, और सूद पर शाहिद रहना, कोई विटनेस होगा जैसे गारंटर होता है। तो ये 4 कैटेगरीज हदीस में कैटेगोरिकली फरमाई गई है कि ये उन पर लानत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कुरान में तो आया है कि सूद जो है खाली लेना हराम है, कुरान में
लेने की बात है भाई, सूद मत ले लो। इसलिए सूद जो हम बैंकों में जो हमारा पैसा है सेविंग अकाउंट्स में, तो वो तो जायज है क्योंकि वो उसकी उसके बारे में कहा नहीं गया है। लेकिन हदीस में है, हदीस से ये बात साबित होती है कि सूद लेना और देना और उसका कातिब होना, लिखने वाला और शाहिद भी इस कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर लानत फरमाई गई। अब सूद वही देता है जिसके पास कम पैसा होता है, जो मजबूर होता है। कोई जो मांगता है, मांगने वाला हमेशा कमजोर ही होता है। जब कोई मांगता है तो सूद की वजह से वो उसका एक इस्तेसाल होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। क्योंकि वो अगर 1,000 रुपया या 1 लाख रुपया सूद के ऊपर लोन लेता है, तो उसको 1 लाख को 1.5 लाख भी देना पड़ता है, 1.25 लाख भी देना पड़ता है। तो देने वाला होता है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, जो सिस्टम है अभी सूद का, या जो उस जमाने में था। तो इससे एक इस्तेमाल होता है, यानी कि एक गरीब को या एक मजबूर को या जो जरूरतमंद है उसका एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि वो एक मजबूर होता है, वो जरूरतमंद होता है। तो सबसे पहले जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है इससे, है ना। आप देखिए यहाँ भी जो भी झोपड़पट्टी में लोग होते हैं, स्लम एरियाज में बेचारे, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। वो सूद के ऊपर सूद देते हैं, वो अपना सोना भी सूद पे देते हैं। पैसा एक कर्जे से निकल कर दूसरे कर्जे में होते हैं। इसी तरह न सिर्फ झोपड़पट्टी वाले, बड़े बड़े कॉलोनीज में जो वेल ऑफ मुस्लिम्स भी है, जब उनको एक लालच होता है सूदी निजाम में पढ़ने के लिए, वो फिर बहुत सी उनका जो अपना भी पैसा होता है वो भी जाया हो जाता है, उनका भी इस्तेसाल होता है। इस्तेसाल कौन करता है? जो ऊपर होता है, जो ज्यादा मालदार होता है। इसके अलावा जो है सोशल इनजस्टिस होती है इससे। सोशल जो समाजी नाइंसाफी होती है। समाजी नाइंसाफी कैसे होती है? भाई किसी के पास माल बहुत है, किसी के पास माल कम है। इससे क्या होता है कि ये फर्क और बढ़ता है, जो अमीर है वो ज्यादा अमीर बनता है, जो गरीब है वो ज्यादा ही गरीब बनता है। रिच बिकम्स रिचर और अमीर, पुअर बिकम्स पुअरर। क्योंकि माल का जो एक्यूमुलेशन है वो मालदारों के पास ज्यादा होता है, और जो माल, जिसके पास माल नहीं है, उनके पास जो जितना भी माल होता है वो भी, उससे वो खाली हो जाता है। तो एक इनजस्टिस होता है, एक नाइंसाफी का एक मामला। सूद है एक नाइंसाफी का एक अलामत भी है ना। और वो हम खुद देखते हैं कि सोसाइटी में कैसे एक नाइंसाफी होती है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया कि वेल्थ, जो जमा पूंजी है, जो माल है, वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी कि जमा हो जाता है। मालदार और मालदार होता है, और गरीब गरीब से गरीबतर होता है। तो इस्लाम में का कायदा है कि जो जमा पूंजी है, जो वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जक़ात का सिस्टम भी इसीलिए है, ताकि जो साहिब जक़ात है, जो साहिब माल है, वो दूसरों तक, वो जिनके पास माल नहीं है उनको, उन तक वो पहुंचाए। जिनके पास थोड़ा है उनके पास और थोड़ा सा आ जाए, और जिनके पास ज्यादा है उनके पास थोड़ा कम हो जाए, और दूसरों का फायदा हो जाए। तो उससे इनजस्टिस दूर हो जाता है, उससे जस्टिस का एक माहौल बन जाता है। और इसके अलावा जो इसके जो असरात हैं, कर्जे में इंसान डूब जाता है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जो किसान हैं, कितनी वो खुदकुशी करते हैं। हर साल हजारों में लोग खुदकुशी करते हैं, क्योंकि वो उसका बोझ सह नहीं पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एक तो इंटरेस्ट होता है एक असल पर, जब वो दे नहीं पाते हैं, टाइमलाइन हो जाती है, फिर सूद के ऊपर सूद चढ़ जाता है। तो एक विशेष साइकिल बन जाता है। तो एक बर्डन हो जाता है, एक डेब्ट, जो कर्जे में इंसान डूब जाता है। एक और जो इसके असरात है, मनफी असरात, वो ये है कि जो इकोनॉमी है, जो इक्तिसादियत है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक जर्ब लगता है। ये एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में हर 10 साल 15 साल के बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। क्योंकि जो सिस्टम ही है ऐसा कि खुशहाली नहीं होती है। इकोनॉमिक सिस्टम एक स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। तो जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, वहां लोगों के पास 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं। उनकी जो पूरी जिंदगी, हालांकि वो कमाते भी बहुत है, लेकिन उनके अखराजात इतने होते हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा है कि उनकी पूरी लाइफ जो है वो कर्जे में ही गुजर जाती है। वो एक जगह का EMI भरते हैं, दूसरी जगह का EMI भरते हैं, तो पूरी सैलरी जो है उनको
EMI में ही जाती है। इसके बरक्स अगर आप उतना खर्चा करेंगे जितना आपके पास पैसा है, तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। वहां लोग परेशान हैं। वहां डिवोर्स भी जो होते हैं वो इसी पे होता है, भाई तुम बिल भरो बिजली की बिल, मैं नहीं भरूंगी। तो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान यही झगड़े रहते हैं कि बिल कौन भरेगा। तो पूरा जो उनका सैलरी है, क्योंकि उन्होंने ऐशो इशरत का जो सामान है अपने लिए किया है, किससे? सूद के सिस्टम के से। तो उससे क्या होता है कि असल में वो इकोनॉमी फिर बर्स्ट हो जाती है। फिर एक वो बबल आता है। फिर पूरे ले ऑफ्स होते हैं। फिर पूरा जो इकोनॉमी डाउन होता है। जो मॉर्टगेज होते हैं, जो बेचारे लोगों ने जो मकानात लिए होते हैं मॉर्टगेज पे, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। या आपने देखा होगा पिछले 30-40 सालों में बहुत बार ये साइकिल आते रहे। तो इसका मतलब ये होगा है कि जो बैंकिंग सिस्टम करंटली है, जो सूदी निजाम है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो ये चंद रिबा के बारे में जो असरात है वो मैंने आपके सामने रखे। इससे आपस में एक खुदगर्जी का एक एक क्वालिटी आती है हमारे में। खुदगर्जी का एक आंसर कि मैं अपने माल को और बढ़ाऊं, और जो हमदर्दी का जज्बा है वो खत्म हो जाता है। सूदी निजाम से हमदर्दी का जो जज्बा है वो खत्म ही हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब देखिए, शरीयत के हिसाब से हमको शरीयत क्या चाहती है, शरीयत के मकासद क्या है? इस्लामी शरीयत के हिसाब से जो किसी का किसी की मतलब किसी का माल है, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब सूदी निजाम से अगर कोई लोन लेने वाला है, उसके कंडीशंस ऐसे होते हैं कि उसका माल खत्म ही हो जाता है। उसका माल खत्म ही हो जाता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी जो रिस्क होती है वो उसके पास ही रहती है। लेकिन शरीयत का मकसद यह है कि हर किसी का माल चाहे कम हो, किसी का ज्यादा हो, उसकी प्रोटेक्शन, उसका तहफुज हो, माल का प्रोटेक्शन। ये चंद उसूल हमको ध्यान में रखने हैं कि शरीयत क्या चाहती है। क्यों हम सूदी निजाम के खिलाफ है? क्यों इस्लाम इसके खिलाफ है? क्यों? क्योंकि शरीयत सबसे पहले ये चाहती है कि किसी के पास भी जो भी माल है, उसकी कम से कम कुछ ना कुछ हद तक एक प्रोटेक्शन हो, उसकी उसको महफूज किया जाए। दूसरा, शरीयत ये चाहती है कि इंसाफ हो, सोसाइटी में इंसाफ हो। ये कोई वजह ही नहीं कि जो मालदार है वो अपनी मालदारी के बिना पर एक गरीब को इस्तेसाल करे। ये हरगिज शरीयत नहीं चाहती। शरीयत चाहती है कि समाज में एक इंसाफ हो। दूसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो। एक ये ऐसा मामला मामला ऐसा हो कि मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन अक्सर जो बैंकिंग का जो ट्रांजेक्शन होता है सूदी मामले में, बहुत ही हिडन चार्जेस भी होते हैं, हिडन क्लॉज होते हैं जो आम इंसान को पता नहीं होते। फिर बाद में इंसान फंस जाता है। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी है कि भाई क्या होने वाला है, अगर ये हुआ तो ऐसा मिलेगा, ये नहीं होता ये नुकसान है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, रिस्क कितना है। वो पूरी ट्रांसपेरेंसी शरीयत चाहता है। शरीयत ये चाहता है कि जब भी आपका लेन देन हो, कारोबार हो या कोई मामला हो, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा साफ हो, ब्लैक एंड व्हाइट। ये आमने सामने दोनों तरफ पार्टीज को पता हो कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, कौन सा रिस्क है, क्या मैं रिस्क ले लूंगा या नहीं लूंगा, तब जाके वो साइन करेंगे। लेकिन सूदी मामला में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। दूसरा है कि शरीयत ये भी चाहती है कि सोशल वेलफेयर भी हो। कोई कर्जा आप ऐसा भी दो जहां आप प्रॉफिट के बजाय आप मदद का एक अंसर हो, है ना? तो सोशल वेलफेयर, समाजी बहबूदी, उसका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो शरीयत ये चाहती है। और आखिरी जो एक मकसद है शरीयत का, वो ये है कि रिस्क जो है, जो भी रिस्क किसी भी डील में हो, वो शेयर किया जाए। ऐसा ना हो कि भाई पूरा रिस्क एक ही के ऊपर लादा जाए। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे 10 लाख रुपया चाहिए किसी कारोबार के लिए। अब इस कारोबार में ये भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। या मानो मकान लिया मैंने, लेकिन ये खुदा न खास्ता अगर भूचाल आ गया, जलजला आ गया, गिर सकता है, नुकसान हो गया। या आग लग गई, खत्म हो गया। लेकिन ये अभी जो सूदी निजाम है, ऐसे सिनेरियोज में जो लोन लेने वाला है, ये सारी रिस्क जो है ये उसी के पास है, और बैंक वाले के पास कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इस शरीयत ये चाहती है कि रिस्क को शेयर किया जाए। लेकिन सूदी निजाम क्या चाहता है? रिस्क को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट कहां से? देने वाले से लेने वाले के ऊपर पूरा बोझ डाला जाए। तो ये है फर्क इस्लामी शरीयत के हिसाब से जो लेन देन होगा, और बखलाफ जो सूदी निजाम। ये चंद पॉइंट्स आप जहन में रखिए। अब जो है इस्लामिक फाइनेंस के क्या क्या कुछ उसूल है मोटे मोटे तौर पर।
जबकि इस्लामिक फाइनेंस जो है वो एक इवॉल्विंग चीज है। अभी ये पूरा, ये इसके ऊपर इज्तिहाद होगा, इसके ऊपर उलमा जो है वो सोच रहे हैं। इसको अभी पूरी शेप नहीं मिली है, लेकिन कुछ किसी हद तक बहुत सारा काम हो गया है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक एसेट होता है, एक कोई चीज होती है जिसका हम ट्रांजैक्शन करते हैं। पैसों, जो सूदी मामला है, अभी जो बैंकिंग का मामला है, उसमें पैसे के बदले पैसा होता है, जबकि पैसा खुद बजाय खुद एक टेंजिबल चीज नहीं है। पैसा कोई एसेट नहीं है। पैसा एक मीडियम ट्रांजैक्शन के लिए। पैसे से आप खरीद सकते हैं मकान, पैसे से आप मशीन खरीद सकते हैं कारोबार के लिए, पैसे से आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं ओला चलाने के लिए, उबर चलाने के लिए। लेकिन पैसा खुद एक एसेट नहीं है। लेकिन सूदी निजाम में पैसों का ही लेन देन होता है, पैसे के ऊपर ही पैसा मिलता है। लेकिन इस्लाम का कानून है कि आप एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शन करो। पैसे के बजाय आप किसी चीज का ट्रांजैक्शन करो। किसी को घर चाहिए, आप उसको घर दे दो, भले ही एडिशनल अमाउंट पे, लेकिन घर घर दे दो आप, है ना? आप घर पर अपना प्रॉफिट रखो, न कि पैसे के ऊपर प्रॉफिट। ये एक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट है इस्लामिक बैंकिंग और सूदी निजाम में। एसेट बैक होना चाहिए। दूसरा उसूल ये है कि जैसे अभी हमने बताया कि रिस्क, हर किसी चीज में रिस्क होता है। भाई मैं कारोबार करना चाहता हूँ, एक दुकान शुरू करना चाहता हूँ, होटल शुरू करना चाहता हूँ, कपड़े की दुकान, या बाहर जो है ठेली वाले बैठते हैं, उनके लिए भी, उनको भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है सामान लाने के लिए। कोई भी कारोबार, इसमें हमेशा रिस्क होता है। लेकिन इस्लामी निजाम में यही है कि भाई रिस्क को शेयर किया जाए। भाई अगर रिस्क, ये कुछ नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो दोनों शेयर करेंगे। किस परसेंटेज तक वो आपस में एक तय होगा, लेकिन एक ही के ऊपर, लेने वाले के ही ऊपर रिस्क नहीं है। इस्लाम ये चाहता है कि रिस्क को शेयर किया जाए। दूसरा ये कि रिबा का तस्वुर ही नहीं है इसमें, इस्लामिक फाइनेंस में। यानी कि रिबा मतलब हो गया कि पैसे के ऊपर पैसा, वो नहीं है। या कमोडिटी के बदले कमोडिटी। जैसे मैंने पहले बोला कि खजूर आपने दिए 1 किलो, और उसी टाइप के खजूर आप मानो 1.5 किलो लेंगे, वो भी सूद में आएगा। तो रिबा का कोई ये नहीं है। अच्छा, और गरार, गरार नहीं है। तो और हराम इन्वेस्टमेंट्स, जैसे अ, शराब में इन्वेस्टमेंट, फिल्म प्रोनोग्राफी है उसमें इन्वेस्टमेंट, जो भी हराम की चीजें हैं उसमें इन्वेस्ट करना, ये इस्लामिक फाइनेंस में नहीं है। कन्वेंशनल बैंकिंग जो है और इस्लामिक बैंकिंग में फर्क ये है कि कन्वेंशनल में एक सूद होता है, उसके ऊपर देने वाला फायदा मंद रहता है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। भाई आपका, उसका हिसाब लिया जाएगा, भाई आपका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना एप्रिसिएशन हुआ, तो वो एक प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस होता है। तो सूद वर्सेस प्रॉफिट, तो ये दो कॉन्सेप्ट है। ये सूदी निजाम में सूद लिखा जाएगा और माना जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। लेकिन इस्लामी निजाम में आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हम शरीक है, अगर लॉस होगा तो लॉस में शरीक है। अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम प्रॉफिट, कम हमारा ये परसेंटेज मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। लेकिन वहां क्या होता है, फिक्स, आपको ज्यादा मिले कम मिले, मुझे इतना सूद चाहिए। ये फर्क है, बुनियादी फर्क। दूसरा फर्क ये है कि जैसे हमने बोला कि डेट बेस्ड, कर्जा के बजाय हम एक एसेट देते हैं, पैसों के बजाय हम किसी एसेट को देंगे। चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो एक रेडी हो, चाहे कोई मशीन हो, हॉस्पिटल में मशीन चाहिए, है ना? चाहे आप कोई गाड़ी देंगे, अब ऑटो फाइनेंस होता है ना? उसमें बाइक लाएंगे आप, उसमें कार लाएंगे आप, ट्रक लाएंगे, या आप कोई अस्पताल की कोई मशीन हो, या मकान लेना हो, तो एक एसेट का ट्रांजैक्शन होगा, पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हाँ, पैसे जो है वो एक जरिया बनेगा उस एसेट को प्रोक्योर करने में, उस एसेट को खरीदने में पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पैसों की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। दूसरा, रिस्क ट्रांसफर वर्सेस रिस्क शेयरिंग। रिस्क को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कन्वेंशनल में क्या होता है कि रिस्क को पूरा ही ट्रांसफर किया जाता है, और इस्लामिक फाइनेंस में रिस्क को शेयर किया जाता है, आपस में लेने वाला और देने वाला शेयर करता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो इस्लामिक बैंकिंग में आती है। एक है मुरब्बा। क्या है? मुरब्बा। मुरब्बा में क्या है कि जो बैंक है, इस्लामिक बैंक, वो कोई चीज खरीदता है। आपको मानो गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी 10 लाख में आती है, तो इस्लामिक बैंक 10 लाख की गाड़ी लेगा और आपको
एडिशनल मनी में आपको ये बेचेगा, मानो 12 लाख में बेचेगा, और बोलेगा कि आप मुझे 5 महीने में पैसे दे दो, 1 साल में पैसे दे दो, डिलेड पेमेंट, है ना। तो ये है, इसको बोलते हैं मुरब्बा, कि असल रकम जो है उसको एडिशनल जायद अमाउंट में हमने बेचा और टाइम दिया इनको, ये अलाउड है, इसको बोलते हैं मुरब्बा। कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग, यानी कि एक कार को हमने 10 लाख में लिया, उसको हमने 11 लाख में मिसाल के तौर पर बेच दिया, और इसको बोला कि अभी 11 लाख मत दो, आप 1 साल में दे दो। तो ट्रांसफर एसेट इनके नाम पे होता है, पहले मैंने खरीदा, फिर इनके नाम पे ये एसेट के मालिक हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मुरब्बा। इसके बाद है मुशारका। मुशारका में क्या होता है कि एक जॉइंट वेंचर है, कि आप और मैं दोनों शिरकत करते हैं, दोनों पार्टीज जो है वो पैसा लगाते हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो शेयर होगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, 50-50 होगा तो 50-50, अगर 60-40 60-40, तो जो भी आपस में तय पाए, और उसको बोलते हैं मुशारका, यानी कि उसमें पैसा दोनों का लगता है। पहले में जो था मुरब्बा, उसमें पैसा किसका लगता है, बैंक का, और वो एडिशनल अमाउंट तय करते हैं, भाई इतना फिक्स्ड अमाउंट आपको एडिशनल देना है, और इतने सालों में इतने महीनों में आपको पैसा वापस देना है। मुशारका में क्या है कि दोनों पार्टीज कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक पार्टी जो है वो उसको लेती है, और उसका जो प्रॉफिट है दोनों में डिवाइड हो जाता है। सेम बराबर है। अभी पूछो सवाल की बात। बात है। दूसरा हो गया ये जो है मुदारबा। उसमें जो है इन्वेस्टर कैपिटल प्रोवाइड करता है, और किसी के पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं है साल में। तो जो इन्वेस्टर पैसे देगा, और आपके पास स्किल्स है, आप इस बिजनेस को चलाएंगे, तो पैसा खाली मेरा है। तो मुदाबरा में पैसा एक का होता है, लेकिन शिरकत दोनों की होती है, क्योंकि दूसरा जो है वो उस बिजनेस को चलाने वाला होता है, और प्रॉफिट और जो लॉस है वो दोनों शेयर करते हैं। तो अब आपको ये है कि ये जो मुशारका और मुदारबा है, उसमें ये फर्क है, मुशारका में दोनों इन्वेस्ट करते हैं और दोनों का प्रॉफिट लॉस होता है, और मुदाबरा में एक ही का इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा टाइम देता है, मैनेज करता है, ये फर्क है। अब एक और है इजारा। इजारा में क्या होता है कि बैंक एक एसेट लेता है, मानो गाड़ी या मानो मकान या फ्लैट लेता है, और वो लेने वाले को उसको रेंट पे देता है, जिसको चाहिए मकान या फ्लैट, उसको वो रेंट पे देता है, यानी कि उसको लीज एग्रीमेंट बोलते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक एसेट जो है वो बैंक का ही रहता है, लेकिन चूंकि ये इस्तेमाल करते हैं, मानो कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मैंने 10 लाख लगाया, और 90 लाख जो है बैंक ने लगाया। अब मैं 10 लाख का तो ओनर हूं, और बैंक जो है मेरे आता है, और मैं इसको यूज भी करता हूँ, और मेरी फैमिली वहां रहती भी है। इसीलिए इसको क्या, इस्लामिक वे में क्या करते हैं इसको, भाई आप इसका रेंट भी दे दो। एक तो रेंट देंगे आप, और मंथली अगर आप एक कुछ इंस्टॉलमेंट देंगे, मानो आपने 10 लाख पहले मंथ दे दिए, पहले तो 10 लाख दिए थे, 10% आप मालिक हो गए, फिर दूसरे महीने आपने और 10 लाख दिए, अब कितना हो गया, आप 20% आप ओनरशिप हो गए, और यहाँ से आप रेंट भी देते हो, रेंट क्योंकि आप यूज कर रहे हो एसेट को, फ्लैट को यूज कर रहे हो, वो रेंट जो है वो उसको प्रॉफिट मिलता है, किसको, इस्लामिक बैंकिंग को। तो ये है इजारा का सिस्टम। इसमें रिड्यूसिंग ओनरशिप होती है, बैंक की ओनरशिप धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जब अगले महीने 2-3 महीने 4 महीने 1 साल के बाद इसका पैसा ज्यादा आता है, और इसका शेयर बढ़ता है, और बैंक का शेयर घटता है, तो एक पॉइंट आता है कि जब ये फुल ओनर बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इजारा, जिसमें रेंटिंग सिस्टम है, लीजिंग सिस्टम है। ठीक है। दूसरा है सलाम। उसमें मतलब हो गया कि एडवांस पेमेंट देते हैं, फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो आइंदा के लिए कोई चीज आए, जैसे फसल है, अब वो आगे आएगी, कितना आएगी, तो उसके ऊपर एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सलाम। तो पहले ही पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके भी कुछ अपने उसूल है, इस्लामी उसूल, न कि सूदी बुनियाद पे, इस्लामी उसूल पे वो एक सलाम, उसका भी सलाम का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है इस्तिस्ना। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, फैक्ट्री में जो कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वहाँ आप, या कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है,
वहां का कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि वहां आपको उसी वक्त प्रॉफिट नहीं मिलता है ना, ये कोई बिजनेस नहीं है जैसे ट्रेडिंग में आप चले और बेच दिया और माल लाया वापस। लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है या कंस्ट्रक्शन होता है, उस फाइनेंस को इस्तिस्ना कहते हैं, उसको इस्तिस्ना कहते हैं। दूसरा होता है सुकूक। सुकूक पे क्या होता है कि इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके रियल एसेट्स होते हैं, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप, वो एक ऑप्शन है। तो ये कुछ दूसरा है तकफुल। तकफुल एक और एक सिस्टम है जहाँ पे इस्लामिक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस आता है, ताकि लोगों का जो एक म्यूचुअल असिस्टेंस हो, एक आपस में बहबूदी का एक मामला हो, उसमें तकफुल एक इस्लामिक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के तरीके से। हाँ, तकफुल। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो हम करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इस्लामिक बेनिफिट का कि इसमें एथिकल इन्वेस्टमेंट होता है। एथिकल हो गया कि यहाँ कोई पसे पर्दा कोई कंडीशन नहीं होती है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है, और एथिकल होता है। इसमें किसी शराब, किसी हराम फील्ड में पैसा नहीं लगाया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, इसमें पूरे पार्टीज जो है आपस में इंक्लूडेड होते हैं, न कि एक्सक्लूडेड। जैसे हम बैंक को पैसा देते हैं, अब बैंक पता नहीं कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करता है, हमको कोई विजिबिलिटी भी नहीं है, तो हम एक्सक्लूड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस्लामिक सिस्टम में हम आपस में इंक्लूडेड होते हैं, हमको पता होता है कि कहाँ पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कौन से फील्ड में लग रहा है, कहीं शराब की फैक्ट्री में तो नहीं लग रहा है? या किसी और गलत कार्य में तो नहीं लग रहा है। और दूसरा यहाँ है कि एसेट बैक्ड होता है, पैसों से नहीं बल्कि एक एसेट इन्वॉल्व होता है, कोई चीज टेंजिबल, जो ठोस चीज है वो इन्वॉल्व होता है। और फेयरनेस होती है। फेयरनेस हो गया कि एक जस्टिस का मामला इसमें आ जाता है। अब जो चैलेंजेस है इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, आपको पता ही होगा कि मुझे लगता है कि आज हमने ये पहली बार इसके बारे में बात की। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास मालूमात नहीं है, हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। अवेयरनेस का चैलेंज बहुत बड़ा है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जो कम से कम इंडिया में जो कानून है, उसके तहत हम अभी ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी ये इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है आरबीआई ने। बहुत साल पहले बात चल रही थी, लेकिन फिर ये अटक गया मामला। मनमोहन सिंह जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो बात बहुत आगे बढ़ी थी, मैंने जो सुना है। लेकिन उसके बाद जो अप्रूवल्स थे इस्लामिक बैंक के यहाँ नहीं आए, जबकि यूरोप में, गल्फ में, यूएस में इसको एक प्रोडक्ट की हैसियत से इसको माना जाता है। और जो कन्वेंशनल बैंक्स है, उनके उनमें अलग एक इदारे होते हैं इस्लामिक बैंकिंग के, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें ग्रोथ कितना है, और मुसलमानों का जो पैसा है, जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शन नहीं है। इसीलिए यूरोप और यूएसए में ने इनका ये ऑप्शन रखा है इस्लामिक बैंक में। अब इंडिया में भी चैलेंजेस है, और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत कम है अभी। इसके ऊपर और काम करना है, जो सिनेरियोज है, तो सुकूक है, बाकी है, तो और प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे कन्वेंशनल सूदी निज़ाम में प्रोडक्ट्स होते हैं, हमको भी इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहकर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में काम करना पड़ेगा। अब आज के हमको यही टेक अवेज है आज के इस सेशन में, कि इस्लामिक फाइनेंस को जो है वो एक इंसाफ पसंद फाइनेंस है, सिस्टम है। वो इंसाफ को प्रमोट करता है, और ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्क जो है वो शेयर किया जाता है, और इकोनॉमी जो है किसी मुल्क की या किसी शहर की, वो बढ़ सकती है, एक्टिविटी बढ़ सकती है। कोई कोलैप्स का इम्कान बहुत कम है इसमें, जैसे कि कोलैप्स सूदी निज़ाम में होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे फायदे के लिए है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमको सूद के जो बुरे नताइज है उससे हमको बचाए। और इस, कम से कम मैं बोलता हूँ, आज के सेशन में हमको कम से कम ये सोचना चाहिए, भले ही हम इस्लामिक बैंकिंग यहाँ ना हो अभी, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारा बैंक्स में जो पैसा है, जो सूद का पैसा है, उसको हम कैसे अलग करें। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो हमारी मुसलमान है, वो बहुत ही मजे से वो सूद का पैसा खाते हैं जाने अनजाने में, और उसका फायदा उठा रही है। कम से कम हम आज इतना कर सकते हैं कि अपने बैंकों में जितना भी हमारा सूद है, जैसे हम जक़ात हर साल निकालते हैं, हम सूद को भी निकाल कर उसको डिस्पोज करें। अपने उलमा से पूछे इसको किसको दे सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं, और अपने ऊपर उसको यूज ना करें। कम से कम ये इतना एक आज का टेक अवे हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔